So Raman, you will be making students enter the room who comes in late, okay? Raman, are you Okay, there? okay, ma'am. हाँ जी Okay, मैम. okay. So we will be starting the class now. This is how to write a bar chart in less than 10 sentences. This video we've made recently and it has become a super duper hit because it is, clearing all the doubts of students and they're finding it very easy. They've got a streamlined method how to go about writing a graph, and when they just see these 10 sentences, then their confidence level crops up that of course 10 sentences we can learn how to write with a bit of practice. Okay, and the very average students are also gaining confidence with these graphs and are being able to write them. Okay, so in this video, no, I'm not making a video now. In this class I'll be focusing on introduction, overall, body paragraphs, and the comparisons. Why do the comparisons need special focus? Because see, whenever you read any question of graph, when you read the chart below shows the percentage of young people at universities in 6 countries in 2000 and 2007. Summarize the information by selecting and reporting the main features and make comparisons where relevant. See, make comparisons where relevant. You have to learn how to make good comparisons. If your graph will hold good comparisons, you will definitely get a good score in your writing task 1. And believe me, writing task 1 is very important. It's as important as writing task 2, even if the weightage is 1/3. The weightage of the essay is 2/3. The weightage of the graph is 1/3. Even then, this task is very, very important. um, because this is checked first, and when this is checked, after that only the essay is checked. So it lays an impression in the mind of the examiner. If you've done this very well, you'll definitely create a soft corner for your writing in the heart of the examiner, and your task 2 will also be given good grades. Of course, you have to write it well, but if this goes very bad, the impression carries on to the essay also. Okay. Okay, so here this is a percentage of young people at university: Italy, Spain, UK, Poland, Norway, and Finland. On this y-axis, there is the percentage. On the x-axis, we have the countries, and there are 2 years, that is 2000 and 2007. So the two different columns for the two different years are there. Okay. So when you write the introduction in the step 1, focus on the question, the diagram, and understand the meaning behind. Speak out one line with the data. ये बहुत important है. This has helped many students कि आपको एक लाइन डेटा के साथ बोलनी है जोर से. जैसे इस केस में आप कोई भी एक लाइन बोल के देख लो, आपको पता चल जाएगा कि ये किसके लिए है. जैसे इसमें देखो, इटली 38 लिखा हुआ है ना, 38. सो आप लिख सकते हो 38. ये पता है आपको परसेंटेज है, तो 38% ऑफ द इटालियन यूथ वर एनरोल्ड. वर क्यों आया? क्योंकि ये दोनों ईयर्स पास्ट के हैं. आप 2000 वाला कॉलम देख रहे हो तो पास्ट का ही लिखेगा. 38% ऑफ द इटालियन यूथ वर एनरोल्ड इन यूनिवर्सिटीज इन 2000. ठीक है. एक लाइन ऐसे पूरी डेटा के साथ बोलो, आपको पूरा पता चल जाएगा ये 38 क्या है, ये इटली क्या है, और ये परसेंटेज किसके लिए है. ठीक है. सो फर्स्ट आप इंट्रोडक्शन के टाइम ये एक लाइन जरूर देख लेना, और फिर आपने अपना इंट्रोडक्शन कैसे बनानी है. सबसे पहले तो आपने ट्राई करनी है पैराफ्रेजिंग इफ पॉसिबल. इफ यू कैन नॉट डू द पैराफ्रेजिंग, तो ज्यादा सोचो मत, जस्ट मेक माइनर चेंजेस. ठीक है. सो आप यहाँ पे द ग्राफ चार्ट बिलो है. बिलो आपके आंसर शीट पे कोई चार्ट नहीं होने वाला. तो आपने क्या लिखना है? द गिवन बार ग्राफ. Raman, you can mute everybody. Raman, you also have the power to mute everybody. Okay, please do that because it's creating a disturbance Okay, here. ma'am. हाँ. Okay. Okay, ma'am. हम्म, तो इसमें देखो, मैम आपका भी म्यूट हो गया. okay. Okay. So the chart below shows the percentage of young people at university. So below आपका chart नहीं है, आप क्या लिखोगे? The given column graph.
ओके, द गिवन कॉलम ग्राफ शोज द परसेंटेज. सो यहाँ पे कैसे करोगे? द बार ग्राफ illustrates the proportion of youth from 6 countries studying in universities in 2000 and 2007. ये बना है. इधर 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 था इन 2000 and 2007. तो ये इन ही रहेगा बिकॉज से 2 ही साल है पर्टिकुलरली. सो इन 2000 and 2007 है. 6 कंट्रीज के नाम ले सकते हो पर ज्यादा लंबा हो रहा था इसलिए हमने नाम नहीं लिया. परसेंटेज की जगह हमने प्रोपोर्शन कर दिया. ठीक है, यहाँ पे चार्ट की जगह हमने बार चार्ट कर दिया है. कॉलम ग्राफ लिख सकते हो. बिलो हटा दिया है. शोज की जगह इलस्ट्रेट्स कर दिया है. अब यहाँ पे और कोई वर्ड नहीं डालना. आइदर यू विल पुट इलस्ट्रेट्स और वन मोर वर्ड यू कैन पुट एंड दैट इज, व्हाट इज Compare. दैट? कंपेयर्स. Comparing. compare, ये सिंगुलर है तो कंपेयर्स आएगा. अगर 2 बार चार्ट होते फिर कंपेयर आएगा. ठीक है, एस क्यों आएगा? बिकॉज यहाँ पे सिंगुलर है, एक ही बार ग्राफ है. अगर 2 बार ग्राफ होते यहाँ पे लिखते द बार ग्राफ्स, फिर कंपेयर आना था. ठीक है, एस की गलती पहली लाइन में नहीं करनी है आपने वहां एग्जाम में. ठीक है, तो ये हो गई आपकी इंट्रोडक्शन. अब उसके बाद आपने ओवरव्यू लिखना है. ओवरव्यू में 2 सेंटेंस डालने हैं. फर्स्ट सेंटेंस और सेकंड सेंटेंस जो है जिसमें जिस भी ग्राफ में एक से ज्यादा साल दिए हुए हैं उसमें आप सेकंड सेंटेंस डाल सकते हो इंक्रीज्ड डिक्रीज्ड वाला, दैट इज कॉल्ड ट्रेंड्स वाली लाइन. और पहला सेंटेंस आप मैक्सिमम मिनिमम का करके बना सकते हो. तो आप अपने ना ग्राफ को अच्छे से देखो. फोकस ऑन द मैक्सिमम इन ईच ईयर इंडिविजुअली. पहले आप ना 2000 वाली लाइंस को सिर्फ देखो. 2007 वाली को इग्नोर करो और 2000 वाली में देखो मैक्सिमम कहाँ है, यहाँ पे है 70. ठीक है, अब क्या करना है आपने? अ, अब दूसरे साल पे फोकस करो, पहले साल को इग्नोर करो. और जो 2007 है उसमें मैक्सिमम है पोलैंड. ठीक है, अब इसके लिए आपने एक लाइन बना देनी है. नाउ कंबाइन द year 1 and year 2 maximums and write your first sentence of overall. रिमेंबर यूज कंट्रास्ट लाइक while, क्योंकि दोनों कंट्रीज में मैक्सिमम डिफरेंट है तो इसलिए आप while यूज कर सकते हो. मतलब मैक्सिमम जो है दोनों अलग अलग कंट्रीज में मैक्सिमम है दोनों सालों में. So you can use the contrast like while. Overall, it is clear that among the given countries, Finland had the maximum proportion of youth enrolled in universities in 2000, while in 2007, the maximum percentage was from Poland. तो ये हो गया आपका फर्स्ट सेंटेंस ऑफ इन ओवरव्यू. सेकंड सेंटेंस ऑफ द ग्राफ. ठीक है, अब आपने सेकंड सेंटेंस लिखना है ओवरव्यू का. उसके लिए आपको ट्रेंड स्टडी करने हैं ग्राफ में. तो ट्रेंड स्टडी करने बड़े इजी हैं. दो ही साल हैं. आप दोनों सालों में देखो किसमें अप गया, दूसरे में इसके ऊपर अप लगा दो. ये आपने रफ वर्क है, ये आपका वहां करना नहीं है आपको. ये रफ वर्क है, कर लोगे तो आपको राइटिंग इजी हो जाएगी. यहाँ पे लोअर एरो क्योंकि डिक्रीज हो रहा है, यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है. अपवर्ड एरो डाउनवर्ड एरो. एंड ये हो गया फॉर द जिसमें सेम रहा है उसमें आप ऐसा एरो डाल दो. तो दिस इज हाउ यू विल मार्क द ट्रेंड्स. तो आपने देखा 3 कंट्रीज में इंक्रीज हुआ है और 2 कंट्रीज में डिक्रीज हुआ है और एक कंट्री है जिसमें अनचेंज रहे हैं फिगर्स. ठीक है, तो ये ट्रेंड्स आपने मार्क कर लिए. तो ये हो अपने आप सेकंड सेंटेंस लिखना है. मेक अ सेंटेंस व्हिच रिप्रेजेंट्स द ट्रेंड फॉर एवरी कंट्री. Please notice how the word except has been used. There was a change in the proportion of youth enrolled in universities in all the countries except Finland. आप ना या तो इंक्रीज डिक्रीज दोनों लिख सकते हो कि 3 कंट्रीज में इंक्रीज हुआ, 2 में डिक्रीज हुआ और एक में सेम रहा. ठीक है, पर वो सेंटेंस बहुत लंबा हो जाता है. तो आपने ये देखा कि इसमें भी चेंज है, इसमें भी चेंज है, इसमें भी चेंज है, इसमें भी चेंज है, इसमें भी चेंज है. चाहे अपवर्ड चेंज है चाहे डाउनवर्ड चेंज है, इसमें कोई चेंज नहीं है. तो आपने ऐसे सेंटेंस बना सकते हो. आप लिख सकते हो देयर वाज अ चेंज इन द प्रोपोर्शन ऑफ यूथ एनरोल्ड और स्टडिंग. दोनों में से एक वर्ड डाल सकते हो. इन यूनिवर्सिटीज इन ऑल द कंट्रीज एक्सेप्ट फिनलैंड. एक्सेप्ट फिनलैंड. अब हमने 3 कंट्रीज में जहां अप हुआ है वहां का नहीं लिखा है, वो हम बॉडी पैराग्राफ्स में डाल देंगे कि इन 3 कंट्रीज में इंक्रीज हुए स्टूडेंट्स और 2 कंट्रीज में डिक्रीज हुए. तो अगर हमने ऐसे ये वाला हमने डिमार्केशन कर लिया तो हमें ये भी पता चल गया कि हमने हमने अपने बॉडी के 2 पैराग्राफ्स कैसे बनाने हैं. एक पैराग्राफ में ये इंक्रीज वाला ले लो और एक अगले पैराग्राफ में 2 डिक्रीज वाले और एक ए वाला ले लो. तो 2 बॉडी पैराग्राफ्स भी बन जाएंगे. सो सेकंड सेंटेंस ये वाला है आपका. टोटल ओवरव्यू 2 सेंटेंसेस का ये बना है. ओवरऑल इट इज क्लियर दैट अमंग द गिवन कंट्रीज फिनलैंड हैड द मैक्सिमम प्रोपोर्शन ऑफ यूथ एनरोल्ड इन यूनिवर्सिटीज इन 2000 while in 2007 the maximum percentage was from Poland.
there was a change in the proportion of youth enrolled studying in universities in all the countries except Finland. तो आपके 3 sentences ग्राफ के हो गए. आपने टोटल कितने लिखने हैं? Less than 10. So it can be 9 or it can be 10 or less than 10. ठीक है, तो ये 2 और 3 सेंटेंसेस हो गए. अब डिवाइड द बॉडी पैराग्राफ बेस्ड ऑन ट्रेंड्स. मैंने आपको भी पहले बता दिया है कि 3 ये है, इनका एक पैरा बना दो, और ये वाले 3 है, इनका दूसरा पैरा बना दो. ठीक है, तो आपको इस तरह से देखना है पैराग्राफ 1, पैराग्राफ 2, अपना डिमार्केशन. आपको और भी कई मेथड डिमार्केशन के सोचने पड़ेंगे. कई बार स्पोर्ट्स होती हैं, तो स्पोर्ट्स में आप इंडोर और आउटडोर स्पोर्ट्स के 2 पैरा बना सकते हो. ये ग्रुपिंग जो है ना, ये आपको प्रैक्टिस के साथ आएगी. व्हेन यू विल स्टार्ट राइटिंग द ग्राफ्स, यू विल आल्सो लर्न द डिफरेंट ग्रुपिंग्स दैट यू कैन डू एंड हाउ यू कैन डिमार्केट 2 डिफरेंट पैराग्राफ्स. तो ये आपको कई बार फ्यूचर का होता है और प्रेजेंट पास्ट का होता है, तो एक पैरा पास्ट का, एक फ्यूचर का, ऐसे भी बना सकते हो. सो ऑल दिस ग्रुपिंग यू विल लर्न एज यू विल बी राइटिंग योर ग्राफ्स. ओके, अब बॉडी पैराग्राफ्स कैसे लिखने हैं? हमने 3 सेंटेंस कर लिए. बॉडी पैराग्राफ 1 में ना 3 कंट्रीज है, इटली, यूके एंड पोलैंड, इनमें इंक्रीज हुआ है. तो स्टेप 1 सेंटेंस 4 है, मेंशन द ट्रेंड ऑफ द बॉडी पैराग्राफ इंक्रीज. 5 एंड 6 में डेटा दे दो तीनों का. तो 3 सेंटेंस ये वाले हो जाएंगे इस पैराग्राफ में. देखो कैसे बने. इन इटली, द यूके एंड पोलैंड, द परसेंटेज ऑफ यूथ एनरोल्ड इन यूनिवर्सिटीज इंक्रीज्ड ओवर टाइम. अब मैंने ये वाले 3 कंट्रीज का इंक्रीज मैंने ओवरव्यू में नहीं डाला था. अगर मैं वहां डाल देती तो यहाँ रेपिटेटिव हो जाता. ठीक है, ये आपको समझ आ गई बात? मैंने वहां सिर्फ चेंज की बात करी है, इंक्रीज्ड की बात नहीं करी, तो इसलिए मैं Yes, यहाँ ma'am. पे लिख रही हूँ. सो दिस इज नॉट रेपिटेटिव. ठीक है. Yes, ma'am. और इन 2000, अब मैंने डेटा देना है फोर्थ सेंटेंस में. इन 2000 38% ऑफ इटालियन यूथ एंड 64% ऑफ पॉलिश यूथ स्टडीड एट यूनिवर्सिटीज एंड बोथ दीज कंट्रीज सॉ अ राइज ऑफ 14% इन द नेक्स्ट 7 years. और मैंने क्या करा 2000 में, इनकी इसकी 38 और इसकी 64, ये 64 पॉलिश, ये 64 इसकी ले ली है दोनों की, बिकॉज ये दोनों में इंक्रीज हुआ है. तो इसकी 38 64 लिख के दोनों में ही बाई चांस ना 14 से बड़ा है, तो मैंने इनका बोथ सॉ अ राइज ऑफ 14% इन द नेक्स्ट 7 years. तो मैंने ये सेंटेंस बना दिया इनका 2000 एंड 2007 का, इटली, यूके एंड पोलैंड का. ठीक है, उनमें से 2 का मैंने बना दिया, इटालियन एंड पॉलिश यूथ का. फिर सिमिलरली करके मैंने यूके की बात कर ली. द परसेंटेज ऑफ यूथ एनरोल्ड इन यूनिवर्सिटीज इंक्रीज फ्रॉम 46% टू 54%. ये समझ आ गया आप सबको? पैराग्राफ बहुत इजी मेथड है. Yes, ma'am. गिव मी, इट्स वेरी इजी. Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके, हाँ, मैम इससे मैम इजी. हाँ जी विशाल. ਮੈਮ ਅਗਰ ਓਵਰਆਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਦਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇੱਕ ਟ੍ਰੈਂਡ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਫਿਨਲੈਂਡ ਦਾ ਚੇਂਜ ਹੋਇਆ. हाँ ਜੇ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਦੀ ਲਾਈਨ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਂਦੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ हाँ ਪਾਣੀ ਪੈ ਰਿਹਾ ਉਦਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, हाँ ਤਾਂ ਬੋਡੀ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਸੈਂਟੈਂਸ 'ਚ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਟ੍ਰੈਂਡ ਦੱਸਣਾ, ਫਿਰ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਦਾ ਟ੍ਰੈਂਡ ਦੱਸਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਲਾਈਨ ਪਾਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਆਣੀ ਨਾ ਰੈਪੀਟੀਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ. जैसी फिर रेपिटेशन हो जाएगी ना, फिर नहीं पानी पेगी, फिर तुसी सीधा डेटा तो शुरू कर दियो. ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ठीक है. ਉਹ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ ਨਾ ਵੀਡੀਓ 'ਚ हाँ ਵੀ हाँ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ trend. ਅਸੀਂ ਇਸ ਲਈ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਬਿਕੋਜ਼ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਸੀ. ਹਾਂਜੀ ऊपर मैं आई एम स्विचिंग टू हिंदी विशाल फ्रॉम पंजाबी बिकॉज देयर आर मेनी स्टूडेंट्स आउट ऑफ पंजाब आल्सो. ਓਕੇ Okay, ਓਕੇ so I'll request all of you students to ask me in Hindi if at all you have to use any other language rather than Punjabi, because many students don't understand Punjabi. ठीक है. ਓਕੇ हाँ ਓके मैम हाँ जी. Yes. मैम मेरा एक सवाल था. हाँ मेरा क्वेश्चन ये सीगा कि सॉरी माय क्वेश्चन हाँ इज दैट हाँ मैम आपने ओवरऑल में हमें इंट्रोडक्शन में समझाया था कि ये 2 गिवन इयर्स हैं 2000 एंड 2007 ओनली. yes. मैम हियर इन द नेक्स्ट 7 years you can see. हाँ सो मैम वो ऑलरेडी गिन भी रहे हैं कि ये 7 years है. हाँ. बट सो इन इंट्रोडक्शन में हम बिटवीन 2000 एंड 2007 लिख सकते हैं. ये क्वेश्चन मेरे माइंड में बड़ी बार आया. बिटवीन कई बार हम लिख भी देते हैं, बट वैसे ना अगर आप ध्यान से देखो तो बिटवीन 2000 एंड 2007 हमें एग्जैक्ट उस साल की और उस साल की फिगर दी हुई है. मैम ड्यूरिंग यूज कर सकते हैं. ड्यूरिंग वही बिटवीन ड्यूरिंग सेम बात है. अगर आपने लाइन ग्राफ होता ना 2000 और 2007 सिर्फ 2 years मेंशन होते हैं और बीच में लाइन बनी होती, फिर आप लिख देते, क्योंकि बीच का भी सारा विजिबल है, ऊपर नीचे गया है कुछ तो विजिबल है. यू गेट माय पॉइंट.
मैम या- मैम यहाँ यस तो यहाँ तो पिन पॉइंटेड 2 सालों की आपको फिगर दी हुई है, तो आप इन मैम बट 2000 एंड 2007 लिख दोगे तो बेटर है। मैम बट ਇੱਥੇ मैम इस फिगर ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ confusion ਹੋਈ like both these countries saw a rise of 14% in the next 7 years. हाँ तो फिर 7 इयर्स पर टोटल पीरियड तो 7 इयर्स ही है ना, और टोटल Okay, राइज भी 14% है ना गुरचरण। okay, ma'am. So we don't need to say कि it's individual like that. हाँ Okay. बिल्कुल नहीं। तो 7 साल में इतना बढ़ गया बिकॉज उस साल में इतना था, 2 साल में इतना था और इतना था, और 7 साल में ही बढ़ा है ना, बीच में हमें बीच का पता नहीं है कब कितना Yeah. बढ़ा है ना, और Yeah. कम भी हो सकता है बीच में 1 आध साल में। ये कौन कर रहा है ड्राइंग पेंटिंग? नवरीन कौर मैम। ओके चलो अब देखो सिमिलरली इन द यूके द परसेंटेज ऑफ यूथ एनरोल्ड इन यूनिवर्सिटीज इंक्रीज फ्रॉम 46 to 54%। मैंने उन दोनों कंट्रीज को साथ में इकट्ठा ले लिया बिकॉज दोनों का इंक्रीज एक जितना था, इसका इंक्रीज डिफरेंट है, इसलिए मैंने सिमिलरली करके, क्योंकि इसमें भी इंक्रीज हुआ है तो मैंने सिमिलरली कनेक्टेड डाला है, समझिए, सिमिलरली बिकॉज इसमें भी इंक्रीज हुआ है, पहली 2 कंट्रीज में भी इंक्रीज हुआ था, उनका एक सेंटेंस मैंने इसलिए बना दिया बिकॉज उसमें उनमें इंक्रीज एक जितना ही था 14%, इसमें मैंने सिमिलरली डाल के अलग सेंटेंस बना दिया बिकॉज इंक्रीज सिर्फ 8% का हुआ है। ठीक है, अब ये हमारे 4 5 एंड 6 सेंटेंस 3 हो गए। ठीक है, अब अगला पैरा देखो, राइट द नेक्स्ट पैराग्राफ। 2 कंट्रीज हैं स्पेन एंड नॉर्वे, उनमें डिक्रीज है, एक कंट्री है फिनलैंड, उसमें अनचेंज है। हमने ये 3 कंट्रीज के लिए सेंटेंस बनाने हैं। सबसे पहले सेंटेंस 7 में मैंने ट्रेंड मेंशन कर देना बिकॉज ये वाला ट्रेंड हमने डिक्रीज वाला ओवरव्यू में नहीं डाला था, इसलिए हम यहाँ डाल रहे हैं। ठीक है, वी आर नॉट गोइंग टू डू रेपिटेटिव थिंग्स इन अवर राइटिंग टास्क बिकॉज अगर एग्जामिनर ने रेपिटेशन जो है वो जज कर ली तो एग्जामिनर ने उतना वर्ड काउंट कम कर देना है आपका। ठीक है, so that is why we advise not to write a repetitive sentences in the graph or even in the essay for that purpose। ठीक है, तो यहाँ पे अब हमने इस पैरे में डिक्रीज वाले कंट्रीज लेनी है या स्टेबिलिटी वाली कंट्री लेनी है, तो हमें ये वाला कनेक्टर हम पैराग्राफ के शुरू में डाल रहे हैं, बाय कंट्रास्ट। ये बात आप सबको समझ आ गई मैंने यहाँ बाय कंट्रास्ट क्यों लिखा है? यस मैम। क्योंकि कुछ Yes, ma'am. कंट्रास्ट है, क्योंकि कुछ कंट्रास्ट है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे बाय कंट्रास्ट लिख दिया। ठीक है, पहला इंक्रीज था, अब डिक्रीज है, कंट्रास्ट है, तो हमने बाय कंट्रास्ट लिख दिया। स्पेन एंड नॉर्वे विटनेस्ड ए स्मॉल डिक्लाइन। ये देखो, स्पेन में 46 से 41 है और नॉर्वे में 66 से 65 है। ये स्मॉल डिक्लाइन है इन द प्रोपोर्शन ऑफ यूथ एनरोल्ड इन यूनिवर्सिटीज। ये सेंटेंस 7 हो गया ट्रेंड का। In Spain, the percentage of youth enrolled in universities fell from 46 to 41%, and in Norway, the proportion fell from 66 to 65%. Finally, the percentage of Finnish youth in universities remained the same at 70%. ये 9 सेंटेंसेस में आपका ग्राफ कंप्लीट हो गया। अगर आप थोड़ा सा इसको अच्छे से समझ लो, मैं ये बता रही हूँ कि आपको फिर भी कुछ कुछ नई चीजें सीखनी पड़ेंगी व्हेन यू डू डिफरेंट ग्राफ्स इन योर बुक। ओके, अगर मेरी बुक में 250 ग्राफ है ना, तो कॉलम ग्राफ मोर देन 80 है बुक में, तो आप समझ लो कि कॉलम ग्राफ की परसेंटेज आने के चांसेस कितने ज्यादा हैं। एक बार आपने कॉलम ग्राफ कर लिया अच्छे से, 15 देखो बच्चे पता है क्या करते हैं, मुझे वो बड़ा अजीब लगता है जब बच्चे आके कहते हैं मैडम कॉलम ग्राफ अब हमने लिख के देख लिए 3-4, अब हमें पाई करा दो, अब हमें टेबल करा दो। सबका सेम है, कॉलम ग्राफ 3-4 करके आपका ये मत समझने लग जाना आपके कॉलम ग्राफ हो गए, बिकॉज एवरी ग्राफ में मेरा ये मानना है एवरी ग्राफ टीचेज यू समथिंग। तो जितने आपके पास गोल्डन रिसोर्स है, एटलीस्ट यू हैव द क्वेश्चंस। ओके, यू हैव द क्वेश्चंस विद यू, राइट? बुक में कई, अब हम ग्राफ जो है ये सिंपल मेथड से दोबारा हमने रीराइटिंग शुरू करी है, बिकॉज पहले हम कुछ भी कैसे भी लिख, देखो जिनका बेसिक लेवल ऑफ इंग्लिश गुड है उनको कुछ नहीं प्रॉब्लम, उन्होंने सिर्फ सेंटेंसेस बना के इसको डिस्क्राइब कराना है, थोड़ा बहुत डिफरेंट वे भी हो जाएगा तो भी करेक्ट है, बट दिस इज वन मेथड विच इज गोइंग टू रियली हेल्प यू। इंद्रुप सर टुक हिज एग्जाम, ही गॉट वेरी गुड बैंड्स 8.5, बट उन्होंने आके मुझे ये बोला कि मामा ग्राफ में मुझे 25 मिनट्स लगे, बच्चों को तो बहुत लगेंगे, वी हैव टू फाइंड ए मेथड जिसमें हम सब बच्चों को अच्छे से करा पाए और सबके अच्छे बैंड आए। और जब जब से ये वाले ग्राफ्स बच्चे करके जा रहे हैं, मोस्ट ऑफ द चिल्ड्रन आर गेटिंग 6.5 7, इवन अबव 7 ऑल्सो।
ठीक है, तो ग्राफ्स जो हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अच्छे से, और छोटे से ग्राफ होते हैं, 12 मिनट में लिखा जाता है। डेली यू कैन प्रैक्टिस अ ग्राफ। 20 मिनट्स आपको एग्जाम में देने हैं, इससे ज्यादा नहीं देने। इन दोज 20 मिनट्स यू ऑल्सो हैव टू लुक इनटू you know what you are you have to look into those that you save time for proofreading. And believe me, if you will do your own graphs proofreading, you will as your own teacher find out 2 3 4 5 mistakes जो आपका बैंड स्कोर फिर फाइनल एग्जाम में ऊंचा ले जाएगी। बिकॉज अभी मेरी एक स्टूडेंट के 7.5 थे, एंड यू नो शी टोल्ड मी, मैम व्हेन आई वाज प्रूफ रीडिंग आई केम अक्रॉस 7 मिस्टेक्स जो मैंने अपनी ठीक करी, and she got 7.5 overall with 7 in writing. So 7 mistakes अगर चली जाती एग्जामिनर के हाथ में तो 7 नहीं आने थे। ये तो आपको भी पता चल रहा है ना। तो अपने आप प्रूफ रीडिंग में भी गलतियां निकलती हैं, और बड़े सिंपल प्रूफ रीडिंग, कई बार कॉमे के बाद इट लिखना है, आपका आई कैपिटल होता है, ऐसी गलतियां भी एग्जाम में काउंट होती हैं, और छोटी छोटी गलतियों की वजह से बैंड स्कोर कम हो जाता है। सो दिस इज, यू हैव टू बी वेरी पर्टिकुलर कि आप छोटी छोटी गलतियों को ठीक करने के लिए अपनी प्रूफ रीडिंग के लिए टाइम बचाओ। ग्राफ को 15 मिनट से ज्यादा में नहीं लिखना है एग्जाम में, ठीक है। तो 15 मिनट में लिखने के लिए ऐसे मेथड आपके पास हैं, आपके मन में एक पैटर्न है, बस पैटर्न फॉलो करके आपने फटाफट लिखना शुरू करना है, थोड़ा प्लानिंग करके 1-2 मिनट की, ठीक है। सो नाउ आई विल बी शेयरिंग यू द कॉलम ग्राफ्स फ्रॉम माय बुक, ओके, एंड वील बी डूइंग अ फ्यू कॉलम ग्राफ्स। बुक के जो कॉलम ग्राफ्स हैं, सारे कॉलम ग्राफ पास्ट एग्जाम कॉलम ग्राफ्स हैं, एंड यू नो वेरी वेल दैट दे आर बीइंग रिपीटेड, ठीक है, रिपीट हो रहे हैं। अब भी कुछ रिसेंटली कॉलम ग्राफ्स आए हैं जो कि लिखे नहीं है, जो हमने अभी लिखे नहीं है, अभी मेरे स्टूडेंट्स को आए हैं ऑन दिस लास्ट डेट कौन सी थी एग्जाम की? 21st। हाँ, 21st को उस दिन आए हैं, तो वो मैंने लिखे नहीं है। तो आई वाज थिंकिंग मेरी राइट विद मी ग्राफ की क्लास होती है, आपको पता है मैं राइट विद मी ग्राफ की क्लास लगाती हूँ कई बार। Yes, ma'am. हाँ, वो जो ग्राफ है, वो जो क्लास है ना, वो बड़ी बच्चों को पसंद आती है। और उसमें क्या होता है कि हम इकट्ठे मिलके लिखते हैं, और जब इकट्ठे मिलके लिखते हैं तो आपको एग्जाम में भी उसको हैंडल करना आ जाता है ग्राफ को, ठीक है। सो मैं लास्ट में आपको लेके जाती हूँ। ये ग्राफ अभी आया है 21st को 1 PM इंडिया में, ठीक है, ये स्टूडेंट ने शेयर करा है। if that student is here in the class, I would ask him if this is okay कि कुछ change है इसमें, अभी बता दो, हम लिखने से पहले change कर लें। If the students who've taken the test on the 21st, anybody is in here in the class? No. Okay. एक ये आया है 9 बजे, ठीक है, और ये वाला आया है 1 बजे। ये दोनों ग्राफ्स बुक में नहीं थे। अब आपको मैंने बताया है कि ऐसे लिखना है। अब आप मुझे बताओ इंट्रोडक्शन, चलो आप बोलोगे और मैं लिखूंगी। ओके, पहले मैं आपको क्वेश्चन दिखा रही हूँ। ये क्वेश्चन देखो, दिस इज अ क्वेश्चन रिटन इन फ्रंट ऑफ यू। यू विल स्पीक आउट द इंट्रोडक्शन एंड विल बी राइटिंग इट डाउन, ठीक है। चलो, हु विल स्पीक इट आउट? आई विल गिव चांस टू विशाल। विशाल, हाँ जी मैम। चलो बोलो। The bar graph हाँ, illustrates the proportion of बार ग्राफ इलस्ट्रेट्स है। अब आप यहाँ पे एक गलती कर चुके हो विशाल, हाँ जी मैम। आप एक गलती कर चुके हो। कितने बार ग्राफ्स है? दो हैं, दो। The bar हाँ graphs illustrate the proportion of हाँ, हाँ जी, illustrate the proportion of uh, male and female हाँ, मेल एंड फीमेल स्टूडेंट्स। students. ओके, इसमें क्या कर सकते हो आप? स्टूडेंट्स हटा दो, मेल्स एंड फीमेल्स कर दो, या मेन एंड विमेन कर दो ऑफ हाँ जी। डिफरेंट एज ग्रुप्स। स्टूडेंट्स हटा दो, मेन एंड विमेन कर दो, पैराफ्रेजिंग हो जाएगी। ऑफ मेन एंड विमेन हु स्टडीड इन स्टडीड का क्या सिनोनिम डालोगे? Enrolled। हाँ, एनरोल डाल सकते हो यहाँ पे। हाँ जी। एनरोल्ड इन ऑस्ट्रेलिया। Pursued. Can we use pursued? Who pursued their education in Australia? Who pursued their full-time and part-time education in Australia? ठीक है, who pursued कर दो। Who pursued
their full time and part time education. अच्छा, आप थोड़ा सा इसमें ना ग्राफ को देख के मेरे को थोड़ा सा इंट्रोडक्शन में कुछ ऐड कर सकते हो? मैम डिफरेंट एज ग्रुप्स दिए हुए हैं। हाँ, Age बिल्कुल groups. बिल्कुल। तो आप क्या लिखोगे? The bar charts illustrate the proportion of men and women of different age groups. या 4 एज ग्रुप्स भी हो सकता है Of मैम। नहीं, four क्या करना है? Of different age groups who Okay, ma'am. who pursued their full time and part time education in Australia. अब ये वाली इंट्रोडक्शन, क्योंकि ये देखो आजकल क्या हो रहा है, मैं आपको एक और बात बता रही हूँ। जुलाई में जो मैप आया हमारे स्टूडेंट्स को अगस्त में, वही मैप, सेम मैप अक्टूबर के शुरू में आया और वही सेम मैप नवंबर में आया। ओके, तो ये वाले जो ग्राफ है, चाहे बुक में नहीं है, यही ग्राफ आपको देखने को मिल सकता है। तो इसलिए ये ऐसे मत सोचना कि अभी आया अभी नहीं आएगा, इस वे में मत इनको देखो, इस वे में देखो कि आपको सेम आ सकता है। और अगर सेम आ जाए तो अब तो आपके पेन से या पेंसिल से 8 बैंड के ऊपर का निकलना चाहिए। एम आई राइट टू एक्सपेक्ट Yes, दैट ma'am. मच? यस, यस मैम। ठीक है। अब ये वाली इंट्रोडक्शन हमने बना ली है, इसको लिखो यहाँ पे। ओके, ये क्यों कैपिटल आ रहा है? ओके, the bar graph. Okay. हाँ जी, बोलो क्या बोला था हमने? मैं अभी क्वेश्चन मेरे सामने नहीं है। proportion The of proportion of प्रोपोर्शन men the and women of different age group of different age groups who pursued their who pursued their full time and part time education. full time ma'am. and part time. मैम क्या आपने डिफरेंट की जगह पर वेरियस भी कर सकते हैं? हाँ, वेरियस एज ग्रुप्स, डिफरेंट एज ग्रुप्स जब मेरे को ज्यादा बेटर लग रहा है। वेरियस कुछ फुल टाइम एंड पार्ट टाइम एजुकेशन in In Australia. Australia. in इन Australia. ऑस्ट्रेलिया। In Australia. in 2005 In 2006 I think so. 6 या 5 था मैम। 6 2006, ठीक है, in 2006. मैं हम Okay. इनकी जगह for भी लिख सकते हैं। For 2006? बिल्कुल Yes, नहीं, ma'am. बिल्कुल नहीं। Okay. हाँ, तो फॉर क्यों? उसके लिए 2006 के लिए उन्होंने एजुकेशन ली कि 2006 में ली। Okay, mainly. हाँ, तो मई के लिए इन आएगा ना। Yes, ma'am. ओके ओके, अब सेकंड सेंटेंस, ये इंट्रोडक्शन होगी 1 सेंटेंस। अब हमने ओवरव्यू लिखना है। अब आपने ओवरव्यू बताना है मुझे। ओवरव्यू में आपने 2 सेंटेंस बनाने हैं और 2 सेंटेंस, एक सेंटेंस मैक्सिमम मिनिमम का बनाओगे और दूसरा सेंटेंस ट्रेंड्स का बनाओगे। अच्छा, इसमें वैसे टोटल कंपैरिजंस कितने हैं इस ग्राफ में? एक कंपैरिजन तो एज ग्रुप्स का है, एक कंपैरिजन मेन एंड वीमेन का है। ये 2 कंपैरिजंस है ना। एक part time full time. एक पार्ट टाइम एंड फुल टाइम एजुकेशन का है, तो 3 कंपैरिजंस है। हमने ना 2 कंपैरिजंस ओवरव्यू में कर सकते हैं और एक हम बीच में जब बॉडी लिखेंगे उसमें कर देंगे, ठीक है? नहीं तो ओवरव्यू बहुत लंबा हो जाएगा अगर हमने हर तरह के कंपैरिजन ऊपर करे, ठीक है? तो अब बताओ इसमें जो है ओवरव्यू कैसे बनाएंगे? रीना ट्राई करो। मैम और भी मैक्सिमम तो मैक्सिमम ना 20 से 34 वाले ही कर रहे हैं दोनों में, मेल और फीमेल में। 20 to 24। हाँ जी, एक तो ये है हाँ इसमें। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। मेल्स और फीमेल्स में जो मैक्सिमम जो स्टूडेंट्स हु वेंट फॉर फुल टाइम एंड पार्ट टाइम एजुकेशन वर इन द 20 to 24 एज ग्रुप, ठीक है? और मिनिमम का कोई है ऐसे सेम? ऐसे तो नहीं, तो हम मिनिमम को इग्नोर कर देंगे, अंदर लिख लेंगे, तो मैक्सिमम का हो गया। अब ट्रेंड्स का कुछ बनता है? अच्छा, एक ही साल No, है, ma'am. एक ही साल है, तो हमें 2 तरह के वो करने हैं, हमें ट्रेंड देना ही नहीं है इसमें, ट्रेंड है ही नहीं कोई।
ओके मैम ये तो एज बढ़ने के साथ साथ ना एजुकेशन कम हो रही है, ये लग रहा है। तो मतलब कि जो 24 के बाद कम हाँ, लोग पढ़ रहे हैं। ये लिख सकते हैं कि विद इंक्रीजिंग एज पार्ट टाइम में कम हो गई। पार्ट टाइम में मैम फीमेल्स में कम हो रही है। ओके फीमेल्स में जो ये देखो ये फुल टाइम है, ये वाली फुल पार्ट टाइम है, ये फुल टाइम है, ये तो सेम है। ये और कांस्टेंट है, ये डिक्रीज हो रही है मैम। ये फुल टाइम में इंक्रीज है ना, यस मैम। इसमें भी इंक्रीज है फुल टाइम में। सो मोर पीपल एनरोल्ड। अच्छा आप देखो मोर पीपल हर एज ग्रुप में मोर पीपल ने पार्ट टाइम में एनरोल करा है कि फुल टाइम में? मैम पार्ट टाइम। हम ओके पार्ट टाइम में किया है, एक्सपेक्ट 30+। एक्सेप्ट 30+ जिसमें मोर ने फुल टाइम एनरोल करा है। यस मैम। 30+। अच्छा हाँ ये तो बहुत अच्छा एक ओवरव्यू का सेंटेंस है दैट मोर स्टूडेंट्स ऑफ बोथ जेंडर्स, more males and females enrolled in part-time education than full-time education except for the 30+ age group. यस मैम। ठीक है, except for the 30+ age group, more males and females, more people, students of both genders enrolled in part-time education than full-time education. ठीक है, ये सारी एज ग्रुप्स में ना, ऑल एज ग्रुप्स में। फुल टाइम। हाँ यस मैम। हाँ ठीक है, तो एक तो ये हो गया और दूसरा सेंटेंस जो पहले रीना ने बनाया था दोनों लिख देते हैं अब। ठीक है, अब आप लिखवा दो मुझे, चलो। मैम also for age 25 to 29 हाँ percentage for men and women who enrolled are similar 80. वो हम बॉडी में लिख देंगे। Okay मैम। ये हमें बॉडी में भी तो कुछ लिखना है ना, तो हम जो जनरल जिस्ट वाली जो है कंपैरिजंस वो हम ओवरव्यू में 2 सेंटेंस देंगे और फिर हम बाकी कोई कंपैरिजन बचेगा हम बॉडी में देंगे। Okay मैम। ठीक है, सो लाइक हाँ। दैट। हाँ अब बोलो ओवरऑल। Overall, it is clear And that seen that हाँ हाँ the maximum the maximum proportion percentage of of male and female students students of students. both Yes. students of both genders gender and enrolled in हाँ part-time job. हाँ well age group भी आएगा ना एज ग्रुप बताना पड़ेगा ना मैम इसमें 20 से हाँ। 24 वाला। the maximum percentage of both genders of 20 to 24 age group। हाँ age group enrolled pursued higher education। yeah, ओके स्टडीड इन यूनिवर्सिटीज ऐसे लिख देते हैं, परसूड हम पहले लिख चुके हैं। जी स्टडीड इन ऑस्ट्रेलिया। university yeah Australia ठीक है, अब दूसरी हमने क्या की थी ऑल्सो ऑल्सो दूसरा हमने क्या कंपैरिजन करा था? एक्सेप्ट द 30+ एज ग्रुप। part time Yes, and ma'am. full time. हाँ also in all age groups more students went for part-time than full-time education except for the 30+ 30+ एज ग्रुप। एज ग्रुप। ये 2 सेंटेंसेस हमारे हो गए ओवरव्यू के। ठीक है, Yes, और ये फुल टाइम और पार्ट टाइम के बीच में ना हाइफन डालेंगे, सो दिस विल बी कंसिडर्ड एज वन वर्ड। ओके, अपनी मर्जी से डाल सकते हैं, इट मींस वहां पे मैम नहीं फुल टाइम पार्ट टाइम है ही वैसे वन वर्ड है ना। फुल टाइम Yes, अगर हम ma'am. फुल और टाइम दो Okay. अलग अलग पढ़ो तो वर्ड्स ही नहीं है। ये फुल टाइम Okay, ma'am. एजुकेशन है तो वो है ही Okay. हाइफनेटेड है, इट हैज टू बी Okay. हाइफनेटेड। ठीक है, ओके मैम। ये हमारा मैम हाँ जी बोलो। ਮੈਮ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਮ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਲਰੇਡੀ ਇੱਥੇ ਚੈਟ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਮੈਮ ਓਵਰਆਲ ਦੇ ਵਿੱਚ
हाँ मैम परसेंटेज नहीं यूज करना, बाकी सारा कुछ यूज कर सकते, लाइक हाँ ईयर ईयर भी एज एंड भी। हाँ तो हमने डेटा नहीं डाला, डेटा इज परसेंटेज, वी आर Data नॉट is one. पुटिंग द डेटा। ओके मैम, हाँ दिस इज नॉट पुटिंग द डेटा। ठीक है। ओके मैम, हाँ थैंक यू। तो मैं ना एक्चुअली इतनी टेक सेवी नहीं हूँ कि मैं पढ़ाती भी जाऊँ और चैट बॉक्स भी सर्च करूँ क्या है, और इसलिए यू कैन टेल मी अगर कोई डालता है तभी मैं जो कोई वर्बली कुछ पूछ लेता है ना उसका रिप्लाई हो जाता है। चैट बॉक्स तो देखने का मेरे को, आई एम नॉट दैट टेक सेवी, मैं सारे काम कर लूँ, इतनी मल्टीटास्किंग कर लूँ साथ साथ, वो नहीं होती मेरे से। ओके चलो अब आगे चलो। अब क्या लिखना है बॉडी में? बॉडी के 2 पैराग्राफ्स कैसे डिवाइड करने हैं? आप बताओ कैसे डिवाइड करने हैं? मैम जहाँ पहले मेल का या फिर फीमेल का, Yes, ma'am. हाँ मेल्स एंड फीमेल्स का अगर अलग अलग बनाओगे ना तो आपका आपस में कंपैरिजन कम होएगा। और मैम जहाँ पे पार्ट टाइम और फुल टाइम का अलग एज अलग। टाइम मैम, एज के अकॉर्डिंग कर देते हैं मैम, कंपैरिजन करके। अगर आप एज का कंपैरिजन कर लोगे ना, पहले 2 एज ग्रुप्स को एक में ले लो और दूसरे 2 को एक में ले लो, तो उसमें क्या है कि आप पार्ट टाइम फुल टाइम का भी कंपैरिजन उसमें डाल दोगे और मेल्स फीमेल्स का भी डाल दोगे। ठीक है मैम। दैट आई थिंक दैट विल बी बेटर। पर आप देखो कुछ भी कर सकते हो, मैं आपको ये बताऊं, आपको एग्जाम में अगर ज्यादा सोचने का टाइम नहीं, आप कुछ भी कर सकते हो। एक मेल्स का पैरा बना दो, एक फीमेल्स का बना दो, मेल्स और फीमेल्स में इंडिविजुअली आप एज ग्रुप्स का भी कंपैरिजन कर सकते हो और पार्ट टाइम फुल टाइम का भी कर सकते हो। ऐसा कुछ नहीं है, उसमें भी बहुत अच्छा कंपैरिजन का स्कोप है। यू गेट माई पॉइंट? you have a lot of scope of comparisons either way, so don't worry। जैसा आपके दिमाग में जैसा आपको सूझे वहां पे वैसा आप कंपैरिजन करके आप बना सकते हो। इसमें ना वैसे आप जनरली देखो 12 8 40 ये इसमें डिस्क्रिपेंसी बहुत है पार्ट टाइम और फुल टाइम में इस एज ग्रुप में। बाकी एज ग्रुप्स में कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है इन द परसेंटेज एनरोलिंग फॉर फुल टाइम एंड पार्ट टाइम। बट सिर्फ ये वाला जो एज ग्रुप है इसमें पार्ट टाइम वाले स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा है और फुल टाइम वाले बहुत कम है। पर ऑन द होल मेल्स और फीमेल्स की ओवरऑल परसेंटेज में कोई खास फर्क है? देखो कोई रिमार्केबल डिफरेंस नहीं है ना? मेरे को सुना नहीं रही ना आपने जो बोला, आपका आवाज बिल्कुल कट रही थी। ओके ओवरऑल मेल्स एंड फीमेल्स में कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है इन स्टूडेंट्स एनरोलिंग इन ऑल एज ग्रुप्स, कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है, ऑलमोस्ट सिमिलर है, ऑलमोस्ट सिमिलर है। देखो ये इसमें थोड़ा सा 8 है 7 है 12 17 कोई ज्यादा फर्क नहीं है, 40 42 12 13 8 8 6 8 8 6 10 12, so there is overall there is not much difference in the males and females enrolling for part time and full time education। ये भी ओवरव्यू का बहुत अच्छा सेंटेंस है। This is also a very good overview sentence because it is giving a gist of both the graphs. Okay, so let's see if we can put this over there. ये जो हमने मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ बोथ स्टूडेंट्स है, जो मैक्सिमम की एक लाइन होगी, देयर इज नॉट मच डिफरेंस। चलो बॉडी में ये डाल देना। सो लुकिंग एट द ग्राफ इन मोर डिटेल, ऐसे शुरू करा करो, दिस इज अ वेरी गुड वे टू स्टार्ट। और अगर वैसे लंबा बन रहा है तो सिर्फ इन डिटेल से शुरू कर दो। लुकिंग एट द ग्राफ, looking at the graph in more detail. Okay. अब मैक्सिमम हम यहाँ पे मैक्सिमम वर्ड रेपिटेशन नहीं करना चाहते, सो इन द so there is not much difference in the percentage of men and women going for part time and full time, ऐसे लिख के फिर हम 2 एज ग्रुप्स का ये दे देते हैं, इनका मेन एंड वुमेन का कितना परसेंटेज है इकट्ठा ही दे देते हैं। ठीक है, और इन 2 को अलग पैराग्राफ बना देते हैं। ठीक है मैम हाँ बोलो। सॉरी मेरा ना डिस्कनेक्ट हो गया था इससे। हाँ मैम इसमें ये भी हो सकता है ना, जैसे जो ये है 20-24 वाला ग्रुप है एक तो, हाँ हाँ इसमें हम बता सकते हैं कि ज्यादा डिफरेंस है, और 25-29 वाले ग्रुप में दोनों केस में कम हाँ डिफरेंस है। एक हाँ तो ये वाला पैरा बन सकता है। एक दूसरा पैरा ये हो सकता है कि जो फर्स्ट ग्रुप है ना जिसमें छोटे बच्चे हैं 19 हाँ ईयर्स तक, हाँ हाँ अ, इनमें हम बता सकते हैं कि जो ये फुल टाइम स्टडी के लिए वो कम इन्वॉल्व है, पार्ट टाइम के लिए ज्यादा है, हाँ और उसका ऑपोजिट है 30+ में।
30 प्लस ओके, में ऑपोजिट है वो दोनों, पर मतलब ये कि फुल टाइम में ज्यादा, पार्ट टाइम में कम है, ये तीनों एज ग्रुप्स में ऐसे है, ओके मैम। ये तीनों में ऐसे है और सिर्फ एक में ही है, वो हमने वहां मेंशन करा है ओवरव्यू में। और वैसे मेल्स और फीमेल्स में दोनों में हमने देखा कि ज्यादा डिफरेंस नहीं है इन द परसेंटेज गोइंग फॉर फुल टाइम एंड पार्ट टाइम। अभी हमने कंपेयर करा है, अगर यहाँ 40 है, 42 है, 12 है तो 13 है, तो दोनों हाँ में जी ना कोई डिफरेंस नहीं है। तो हम ऐसे शुरू कर रहे हैं, ओवरऑल देयर इज नॉट, ओवरऑल कैरी लुकिंग एट द ग्राफ इन मोर डिटेल, हाँ जी देयर इज नॉट much difference in the percentage of male and female students of all age groups going for, अच्छा ये इसका मीनिंग थोड़ा डिफरेंट निकल रहा है। कैसे इनको हम ये 3 का एक पैरा बनाए तो इसका एक पैरा छोटा बनेगा। So वही we तो take मैम, एक पैरा हाँ, छोटा बनता है फिर वरना। हाँ ये दोनों पहले दोनों एज ग्रुप्स को ले लेते हैं, ठीक है। मैम हाँ बोलो। मैम ऐसे भी कह सकते हैं भाई मेल और फीमेल के पार्ट टाइम और फुल टाइम जॉब में मतलब जो डिफरेंस था वो सिर्फ अप्रोक्सीमेटली 28% था, तो इस तरह या एक्सप्लेन कर पहले सकते हैं। पहले इस एज ग्रुप से शुरू करते हैं, इसके डेटा डालने से शुरू करते हैं। लुकिंग एट द ग्राफ इन मोर डिटेल, पहले डिस्क्रिप वो वाली लाइन 20 ये से 24 वाली लाइन डाल सकते विशाल हैं। इसको डाल सकते हैं 40 to 42% मेल्स एंड 40 to 40 मेल्स एंड फीमेल्स एंड 12 to 13%, so almost equal percentage of males and females of 20 to 24 age group went for part time and full time education। फिर उनकी परसेंटेज दे देते हैं, ठीक है। हाँ जी यस मैम। ऑलमोस्ट इक्वल, और बाकी तीनों को एक पैरा बनाएंगे क्योंकि ये पैरे में थोड़ा सा ज्यादा चीजें भी आ रही हैं। इक्वल परसेंटेज ऑफ men and women of 20 to 24 age group went for part-time and full-time education, ठीक है। एक मिनट, 40% अप्रोक्सीमेटली वर्ड डाल देते हैं, फिर एक ही डालेंगे। अप्रोक्सीमेटली 40% went for 40% of both genders, each of both genders went for part-time यस पार्ट टाइम एजुकेशन मैम। part-time education, whereas only कितने परसेंट है? 12 to 13, 12%, only 12% each went for full-time, ठीक है। Education, the biggest discrepancy ये डिस्क्रिपेंसी वर्ड है डिफरेंस के लिए। डिस्क्रिपेंसी इन फुल टाइम एंड पार्ट टाइम students was also there in this age group। अब बाकी तीनों एज ग्रुप्स का एक पैरा बन जाएगा, ठीक है। यस मैम। मैम हाँ। 12% के साथ ना ओनली लगाना जरूरी था मैम, अब अबाउट नहीं लग सकता था? अबाउट भी लग सकता है, ओनली अबाउट दोनों ही लग सकते हैं।
बट उस ओ एग्जैक्ट नहीं है ना, ओनली तो तभी हाँ, लगता ओनली है अबाउट 12% ईच, ठीक है। अब ज्यादा बेटर। नाउ सी दिस इज अ वन पैराग्राफ, इसमें एक ही हमने एज ग्रुप का लिया क्योंकि उसके हमें ज्यादा चीजें देनी थी और बाकी तीनों एज ग्रुप्स में ज्यादा डिफरेंस नहीं है और हम इनको इकट्ठा एक 2-3 सेंटेंसेस में सम अप कर सकते हैं, ठीक है। तो बाय कंट्रास्ट मैंने क्यों लिखा है यहाँ पे, क्योंकि बाकी एज ग्रुप्स में the percentage of students is quite less than this age group, ठीक है। So by contrast in all other age groups in the 15 to 19 कर देते हैं, in all other age groups, तीनों एज ग्रुप्स को इकट्ठा लेंगे। अब 2-3 सेंटेंसेस बनाने हैं। विशाल, अमनदीप, गुरचरण, गोपी, ईशा, दिव्या, so many of you use your brains, come up with some ideas. एग्जाम में आ गया आपको, हाउ यू विल गो अबाउट इट। मैम हाँ मैम एक तो मैम ਤੁਸੀਂ ਸੈਂਟੈਂਸ ਬਣਾਇਆ ਨਾ ਇਹੀ ਵਾਲਾ हाँ 2024 ਏਜ ਗਰੁੱਪ ਦਾ ਮੈਮ हाँ ਇਦਾਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਲਾਈਕ ਮੈਂ ਜਸਟ ਵੈਸੇ ਹੀ ਦੱਸਣ ਲੱਗੀ ਹਾਂ हाँ like the biggest discrepancy is seen हाँ, in was seen हाँ was seen in the both gender हाँ enrolled in the part-time and full-time education approximately of 30%. ये both genders में ये 30% की डिस्क्रिपेंसी, ओके ओके। या मैम ਅਸੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਲਾਈਕ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ हाँ उस चीज हाँ हाँ, तो बिगेस्ट डिस्क्रिपेंसी लिख सकते हो, देयर वाज अ डिफरेंस ऑफ 30%, ठीक है लिख सकते हो, पर वो ज्यादा लंबा हो रहा है। आप पहले इसका करो, बिगेस्ट डिस्क्रिपेंसी वर्ड आ गया हमारा तो उसका क्रेडिट मिल जाएगा, ठीक है। तो ऐसे कर देते हैं, इन ऑल अदर एज ग्रुप्स अमंग द मेल्स स्टूडेंट्स गोइंग फॉर पार्ट टाइम एजुकेशन वर बिटवीन 8 and 12% एंड दोज गोइंग फॉर पार्ट टाइम एंड फुल टाइम एजुकेशन वर बिटवीन 8 and 12%। दोनों में ही 8 and 12 के बीच में है। इसमें 8 and 10, 6 and 10 के बीच में है, इसमें 8 और 12 के बीच में है। तो इसमें क्या है, इसमें क्या है, ये तो 7 and 12 के बीच में है, ये 6 and 17, तो ये थोड़ा सा डिफरेंट है। तो मेल्स का पहले एक सेंटेंस बना देते हैं, ठीक है। अमंग Yes, द ma'am. मेल्स, बाय कंट्रास्ट अमंग द मेल्स those going for full-time education in all the age groups were between, okay, the percentage of those going was, फिर परसेंटेज आ गया ना सेंटेंस में, फिर यहाँ पे was आएगा, was between कितने परसेंट से कितने परसेंट के बीच में फुल टाइम एजुकेशन। ये फुल टाइम का है ना, ये 8 Yes, and ma'am. 6 to 10%, ओके 6 to 10%, 10%, whereas those going for part time was between 8 to 12%, ठीक है। कोई ज्यादा फर्क नहीं है तो इसको ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। ये मेल्स का तो हमारा पूरा ग्राफ खत्म हो गया। अब फीमेल्स के लिए देखो कोई एक लाइन मिले। So among the females बोल देते हैं। अब पार्ट टाइम एजुकेशन इस एज ग्रुप में बहुत ज्यादा थी, 17% ऑफ द 15 to 19 year old girls went for फुल टाइम पार्ट टाइम एजुकेशन, ठीक है। एंड मैम 25 to 29 में फिर ये बता सकते हैं कि वो रिमेन कांस्टेंट है। वो रिमेन्ड कांस्टेंट नहीं लिखा, ये कौन बोला रिमेन्ड वाला वर्ड, रिमेन कांस्टेंट। हाँ अमित मैं आपको समझाती हूँ, ये सब बच्चे समझ लो ये बात। रिमेन्ड का मतलब है कांस्टेंट रहा, ठीक है। नहीं मेरी बात सुनो अमित, मैं समझा रही हूँ, ओके। एक टर्म है रिमेन्ड कांस्टेंट और एक टर्म है वाज कांस्टेंट, ओके। अब दोनों में मुझे फर्क बताओ, रिमेन्ड कांस्टेंट और वाज कांस्टेंट, दोनों में फर्क।
मैं रिमेन कांस्टेंट तो कि अभी भी कांस्टेंट है वो? नहीं, अभी भी पहले की कौन सी फिगर है आपके पास, मुझे बताना अमित। एक ही फिगर है 2006 की। अगर Yes, ma'am. 2004 में 8 होते और 2006 में 8 होते, फिर आप यूज करते रिमेन्ड कांस्टेंट। Okay. अगर एक ही साल में कांस्टेंट है तो फिर आप क्या बोलोगे, वाज Was कांस्टेंट। constant. समझ Okay. गए? Yes, ma'am. ये बहुत अच्छी बात आपने ये गलती करी, अभी तो आपको समझ आ गई ना। अब Yes, ma'am. रिमेन्ड वर्ड आप तभी यूज कर सकते हो अगर पास्ट की फिगर है। आपने सही हिंदी करी, कांस्टेंट रहा। Yes, ma'am. पर मैम कांस्टेंट कौन सा रहा मैम? कांस्टेंट तो नहीं है 8 इसमें 8 कुछ भी। इन्होंने 8 8 का करा है ना मैम इस एज ग्रुप इक्वल में। है ये, हाँ कांस्टेंट नहीं इक्वल है। है, सेम है। हाँ कांस्टेंट नहीं है, वो Yes, ma'am. अलग बात है। कांस्टेंट नहीं। हाँ वो अलग बात है, पर उनको रिमेन्ड और वॉज का मतलब समझाना जरूरी था। ठीक है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो बहुत बड़ी गलती आ जाती है बच्चों की। यस मैम। रिमेन्ड और वॉज। एक बार फिर से बताना मैम, नेटवर्क इशू हो गया था। हाँ, आप रिमेन्ड यहाँ पे सेम आना है, कांस्टेंट नहीं आना अमित। पहली बात तो वो भी आप करेक्ट कर लो अब। ठीक Yes, है, ma'am. हाँ कांस्टेंट नहीं आना। रिमेन्ड द सेम एंड वाज द सेम। रिमेन द सेम अगर 2004 की फिगर होती, उसमें 8 होते परसेंट बच्चे, और 2006 की फिगर में 8 है, तो हम कहते रिमेन्ड द सेम, क्योंकि दो अलग अलग ईयर्स में है। उतने रहे, सेम रहे। ओके, पर इस एज ग्रुप में एक साल में वर द सेम या वॉज द सेम आएगा। परसेंटेज Yes, ma'am. वॉज द सेम, स्टूडेंट्स वर द सेम। आप Yes, ऐसे लिख ma'am. सकते हो। Okay. ठीक है, हाँ। Yes, तो ma'am. ये भी अच्छी बात है। ऐसे ऐसे आप बोलते हो, कुछ गलत निकलता है तो बहुत और बच्चे भी सीख लेते हैं। क्योंकि मैं जब कॉपी चेक करती हूँ, मुझे लगता है ओ ये पॉइंट तो बहुत बच्चे गलत कर रहे हैं, सबको इकट्ठे कैसे मैं समझाओ। हाँ यहाँ पे गलती हो जाए तो सही है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, वही तो मैं कहती हूँ। जितनी द मोर मिस्टेक्स यू डू, द मोर यू लर्न। Yes, ma'am. यस मैम। वो यस, और वो बनते भी नहीं है एग्जाम में हम वो चीजें ना। हाँ। मैंने, मेरे पास अब भी लॉकडाउन के बाद, अब भी जब मैं कॉपियां इतनी चेक कर रही हूँ और मैं क्लास ले रही हूँ, मेरे को पता है जिस बच्चे की कॉपी में मैंने एक ऐसे में 30 गलतियां भी निकाली है ना, उसके भी 7 बैंड आए हुए हैं एग्जाम में। क्योंकि यहाँ पे Yes, ma'am. उनको गलती निकाल के कोई बताने वाला था। मेरे को ये लगता है कि मेरे पास कई बच्चों की कॉपियां आती थी दूसरे सेंटर्स के, ऐसे टिक्स मारे होते थे ऐसे के ऊपर, कोई गलती नहीं निकाली होती थी। तो बच्चों को तो बड़ा मिसकंसेप्शन हो जाता था कि हम तो बिल्कुल ठीक लिख रहे हैं, बिल्कुल ठीक लिख रहे हैं, तो हमारे बैंड क्यों नहीं आए फिर। तो ये गलतियां निकाल के कोई बताएगा, और आप उनको तभी कम करोगे ना, कोई बताएगा आपको। Yes, सिंपल ma'am. सी यस मैम। बात है, सिंपल सी बात है। तो ये छोटी छोटी गलतियां जिन बच्चों की नहीं होती, मैंने ऑब्जर्व करा हुआ है कि उनके अच्छे बैंड आते हैं, तभी मैं इन पे फोकस कराती हूँ बच्चों को। ये मत करो गलतियां, ये मत करो, ये छोटी छोटी गलतियां हटाओ। ठीक है, मैम एक लाइन चेक करना मैम, ये ठीक रहेगी? द हाँ एज ग्रुप हाँ बिटवीन 15 to 19, द परसेंटेज ऑफ फीमेल इन पार्ट टाइम एजुकेशन वाज 17%. हाँ, was 17। देखो, in the age group 15 to 19, the percentage of females was going for part time education was 17। ठीक है, उसके सिंपल परसेंट का लगा सकते हो। ठीक है, बट फॉर 30+ एज ग्रुप इट वाज हाँ हाँ वेरी हाँ लेस। हाँ, तो आप लिख दो। 46%। हाँ, as far among the in ठीक है, as far as the females are concerned, कौन सी एज ग्रुप है? 15 to 19। Yes, ma'am. 15 to 19, 17% went for full time, part time, पार्ट टाइम मैम। पार्ट टाइम education, and वाइल की भी यूज कर लेंगे। हाँ जी, and 7%, while only 7%। सही बात है, सही बात है, आप यूज कर सकते हो while only 7% went for full time education। In the other age groups, दोनों बाकी एज ग्रुप्स में 6 to 12% फीमेल्स वेंट फॉर पार्ट टाइम एंड फुल टाइम एजुकेशन करके सम अप कर दो, बिकॉज बहुत लंबा हो रहा है नहीं तो। ठीक है, इन बोथ द अदर एज ग्रुप्स, एक एज ग्रुप की हम पहले बात कर चुके हैं, सो इन द एज ग्रुप्स को डिफाइन कर दो।
तो अच्छा चलो अलग अलग लिख दो, 2 सेंटेंस बना दो. इन द 25 to 29 एज ग्रुप, 25 to 29 age group, 8% each went for 8% went for part-time, full time education. 8% फिर यहाँ ईच डालोगे ना, तभी 8% इसमें और 8% उसमें गए, नहीं तो फिर आ जाएगा कि 8% दोनों में गए. went for part-time and full-time education. ठीक है. फाइनली, अब फाइनल पॉइंट आपने लिखना है तो फाइनली डाल दो. फाइनली इन द 30+ मैम फीमेल कीवर्ड नहीं आएगा मैम इसमें? आ गया ना, एज फार एज द फीमेल्स आर कंसर्न्ड. ये मैंने शुरू ही ऐसे करा है, फीमेल स्टूडेंट्स आर कंसर्न्ड. आ गया बेटे, देखो यहाँ पे मैंने मेल्स का खत्म कर दिया, फिर एज फार एज द फीमेल स्टूडेंट्स आर कंसर्न्ड कर दिया ना. इन द 30+ एज ग्रुप 6% went for full time, 6% went for part time, and 12% went for full time education. ठीक है, ये आपका ग्राफ हो गया, ये लंबा बना है. मैम ये भी आ सकता था ना कि फीमेल के केस में जो पार्ट टाइम और फुल टाइम है उनका डबल है और इक्वल है, ऐसे भी यूज कर सकते थे. हाँ कर सकते, बहुत कुछ कर सकते. 206 वर्ड का ऑलरेडी हो चुका है. ठीक है, 206 वर्ड का हुआ है. अब आप देखो, ये आप अब एट ए स्ट्रेच अब आपको ये आया, इसमें कंपैरिजंस बहुत थे, 2 बार ग्राफ थे, कंपैरिजंस बहुत थे, थोड़ा लंबा बना है. ठीक है, बट इट्स ओके, यू कैन हैंडल. एक पैरा मेल्स का बना लो, एक फीमेल्स का बना सकते हो. हमने मेल्स का जो ये इसका एक पैरा बना दिया, क्योंकि इसका बहुत ज्यादा लिखने वाला था. ये सब सिमिलर थे तो इनका एक ही में सम अप हो गया सेंटेंस में. विमेन का हमने तीनों का थोड़ा थोड़ा डिफरेंट था, तो हमने सेंटेंस जो है वो बना दिया अलग अलग. आप ये वाला फीमेल्स का ये वाला और ये वाला बाई कंट्रास्ट करके दे सकते हो कि ये किसी ने पहले बोला भी था कि इसमें 7-17 है और 6-12 है ऑपोजिट केस में, तो आप ऐसे करके भी बोल सकते हो इन दोनों का, और इसका सेम रहा, इसका एक सेंटेंस बन जाएगा. ठीक है, और आप ये वाले दोनों एज ग्रुप के मेन एंड वीमेन का भी एक सेंटेंस बना सकते थे कि इनमें सेम ही है. 6 to 8% वेंट फॉर फुल टाइम एंड पार्ट टाइम इस एज ग्रुप में. ठीक है, और इस एज ग्रुप में भी. हाँ बोलो रीना. मैम जो दोनों केसेस में जो 20 से 24 वाला एज ग्रुप है ना, हाँ इसको तो हमने अलग डिफाइन किया था, लेकिन बाकी जब तीनों केसेस को हमने डिटेल में बताया तो हमने ये बताया कि तीनों के बारे में बता रहे हैं, हम चौथे को छोड़ रहे हैं यहाँ पे. इसको छोड़ रहे हैं, मतलब कि हमने ना जैसे 20 to 24 वाले को तो हम पहले बता चुके थे ना. हाँ तो इनको छोड़ दिया ना. इन तीनों का हमने इकट्ठा ले लिया, मेल्स एंड फीमेल्स का. एक जैसे पैरा आपने इसे मेल वाला पहले बताया था ना हमने. नहीं, पहले मैंने मेल वाला, पहले मैंने इसमें तो दोनों का 20-25 एज ग्रुप का मैंने इकट्ठा कर दिया. फिर इसमें मेल्स की परसेंटेज का एक बना दिया, एज फार एज द फीमेल्स आर कंसर्न्ड करके बाकी हाफ बना दिया. तो जो मेल वाला है ना, 6 to 10 बनाया ये वाला. हाँ तो इसमें तो फिर सारे ही ना आ गए, इसमें सारे एज जबकि ग्रुप आ वो गए, वाला भी आया. सारे एज ग्रुप आ गए, सारे आ गए. वैसे बता रही हूँ कि और भी कई वेज में बता सकते हो, आपके पास मैम चॉइस है. हाँ मैम इसमें आपने परसेंटेज का आपने लेवल बता दिया कि लोअर लिमिट बता दी, अपर लिमिट. हाँ फिर जो 24 वाला भी तो उसमें आ गया ना फिर, और जो इसमें ज्यादा है उस लाइन का मतलब तो यही अच्छा, निकलता इसमें है कि आपने हमने सिंपल ही ऐसे. एज ग्रुप अच्छा एज ग्रुप नहीं है, इन ऑल एज ग्रुप्स एक्सेप्ट. एक्सेप्ट, हाँ जी वही चीज कह रही हूँ मैं, हाँ एक्सेप्ट वाली मैम. हाँ एक्सेप्ट. ठीक है, 20-24 एज ग्रुप, यस मैम. 20 to 22-24 24 या एक्सेप्ट 20-24 एज ग्रुप. ठीक है, ये ब्रैकेट में डाल देते हैं ना, एक्सेप्ट 20-24 एज ग्रुप.
ओके मैम, पूरा इतना बड़ा भी डाल सकते हैं ब्रैकेट में? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, यू कैन पुट इन ऑल एज ग्रुप्स वाज एक्सेप्ट दिस वाज, ठीक है, वो एक्स्ट्रा है। ओके मैम। हाँ, यू कैन पुट दैट इन द ग्राफ, इन द ब्रैकेट। मैम जो वेरी हम गुड पॉइंट, वेरी गुड पॉइंट रीना। हाँ ठीक है, हाँ जी मैम जो हम ब्रैकेट में लिखते हैं वो वर्ड काउंट होते हैं या नहीं? बिल्कुल होते हैं काउंट, जब उन्होंने वर्ड काउंट करने हैं तो होंगे, ठीक है। हाँ नहीं, ऐसे तो आप बड़ा अच्छा है ना, 300 वर्ड का लिखा हो, 100 वर्ड ब्रैकेट में डाला हो। जी हाँ तो ऐसे नहीं होता, काउंट होते हैं वो भी, आपने लिखे हैं ना उसमें। तो ये आपको अच्छा लगा, मतलब मजा आया लिख के साथ? लिखने में ज्यादा सीखते हैं बच्चे, मेरे को पता है, और साथ में थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लेवल भी ग्रो होता है कि अब समझ आ गई इसको कैसे हैंडल करना है, थोड़ा सा अगर बड़ा आ जाए वहां पे, ठीक है। Ma'am, यस मैम। can we say boys and girls instead of men and women? हाँ बॉयज से ये 30 वाले बॉयज बोलोगे, मैन एंड वुमेन ही बोल दो, यहाँ पे चिल्ड्रन बोल दो क्योंकि ये टीनेजर्स है, यहाँ पे टीनेजर्स भी बोल सकते हो इन दिस एज। यस मैम, यहाँ यस पे मैम। टीनेजर्स वर्ड यूज कर सकते हो। अच्छा चलो, और अब ये 20 वाला के बाद देखो, वाला एडल्ट। अब ये वाला जो पैराग्राफ है, ये भी आया 21 को, ये बहुत डिफरेंट है, इसमें ना फ्यूचर की वोकैबुलरी भी है, ओके, और इसमें एक लाइफ एक्सपेक्टेंसी का है टेबल। ये हम लिखेंगे नहीं, पर अब आप डिस्कस कर लो, ये मैं आपको होमवर्क दे देती हूँ। आर यू ऑल विलिंग टू डू इट एज ए होमवर्क? यस मैम। पर इसको डिस्कस कर लो थोड़ा सा, मेरे को बताओ आपको समझ क्या आया। यस दिव्या, आप बताओगे, बताओ इसको समझ के क्या है, ये टॉपिक क्या है? ये मुझे थोड़ा सा उससे टफ लगा है, जो पहले देखा ना आपने, पहले जो करा है उससे थोड़ा टफ लगा है, पर ठीक है, आप इसको करने की कोशिश करो। देखो आया है हमारे स्टूडेंट्स को, सुबह 9 बजे वालों को ये वाला आया है। मैम ये उन्होंने पॉपुलेशन का साइज दिया हुआ है और लाइफ एक्सपेक्टेंसी दी हुई है। वेरी गुड, ये यस रखी है। वेरी गुड दिव्या, 2 चीजें आपको समझ आ गई। और ये जो तीन कॉलम्स है, ये पॉपुलेशन साइज है, ये 3 कॉलम्स है, ये 1950 का पहला है, दूसरा 2000 का है, और ये तीसरा 2050 का है। तो इस ग्राफ में आपको क्या डालना है? वोकैबुलरी ऑफ द फ्यूचर मैम। फ्यूचर की भी डालनी है। हाँ फ्यूचर की डालनी है, ठीक है। अब आप 1950 से 2000 के लिए पास्ट टेंस यूज करोगे, और अगली जो फिगर दोगे उसके लिए फ्यूचर की वोकैबुलरी डलेगी, ठीक यस है। मैम। और ये जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है सालों में, 1950, 2000, 2050, ये जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है, ये देखो हर कंट्री में जो है 1950 से लेके 2000 में ज्यादा हुई है, इंक्रीज हो रही है। हाँ, Yes, ma'am. और Increase उसके बाद आगे भी इंक्रीज होने की संभावना है, आपने ऐसे लिखना है, आगे भी Yes, ma'am. इंक्रीज होने की प्रिडिक्शन है, संभावना है, As expected to be increased. इट इज एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज, बी इंक्रीज गलत इंग्लिश है, बी Yes, sir. इंक्रीज है, बढ़ाई जाएगी, इट इज एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज, ओके, इट इज एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज, मैम ठीक है। वुड यूज कर सकते हैं, वुड इट वुड इंक्रीज, आप श्योरिटी से कैसे कह सकते हो फ्यूचर के बारे में? एक्सपेक्टेड। फ्यूचर इज ऑलवेज एक्सपेक्टेड। आप 1 साल पहले ना, आप अभी कोविड की सिचुएशन ले लो, 1 साल पहले आप नहीं इमेजिन कर सकते थे कि हम सब घर में बैठे होंगे, कर सकते थे? नहीं मैम। नहीं, तो हमेशा फ्यूचर का अनुमान होता है, प्रिडिक्शन होती है, एस्टिमेट होता है, फोरकास्ट होती है, ठीक है। उसके मैम लिए माइट भी नहीं यूज करता। हाँ, इट माइट इंक्रीज, शायद इंक्रीज होगा, पर सामने उन्होंने प्रिडिक्शन करके रखी हुई है ना आपके। ठीक है। हाँ तो प्रिडिक्शन है, ठीक है। सो प्रिडिक्शन है, तो प्रिडिक्शन है, एस्टिमेट है, उसके लिए डालोगे, ठीक है। अब आपको ये समझ आ गया ना ग्राफ? आप बताओ सबसे ज्यादा पॉपुलेशन साइज कौन सी कंट्री में था? चाइना। और सबसे कम स्पेन। और कौन सी कंट्री में पिछले जो है 50 सालों में पॉपुलेशन साइज बढ़ा? चाइना मैम। यूएस में ज्यादा बड़ा है मैम। दोनों में बड़ा है। सब में बड़ा है, तीनों में बड़ा है। तीनों में बड़ा है, ज्यादा ओके। मैम चाइना में। हाँ, और कौन सी कंट्रीज में फ्यूचर में और बढ़ने की संभावना है?
मैम China चाइना एंड and यूएसए। यूनाइटेड और स्टेट्स, कौन सी कंट्री में फ्यूचर में कम होने की संभावना है? स्पेन। Spain. स्पेन, कौन सी कंट्री में सबसे कम लाइफ एक्सपेक्टेंसी थी 1950 में? चाइना। और चाइना, कौन सी कंट्री में China. सबसे ज्यादा लाइफ एक्सपेक्टेंसी थी 1950 में? यूएसए। यूनाइटेड United States. और कौन सी कंट्री में सबसे ज्यादा लाइफ एक्सपेक्टेंसी की संभावना है? United States. यूनाइटेड स्टेट्स। ठीक है, अब आपको ये इजी लग रहा है ना, इतना समझ लिया तो? यस हाँ जी यस तो मैम। आपने मैम ये जो टेबल में फिगर्स दी हुई है हाँ ये साल है मैम, ये साल है। एवरेज हमें ईयर्स। ऊपर देखो लाइफ एक्सपेक्टेंसी के ब्रैकेट में क्या लिखा हुआ है? ये टेबल लाइफ एक्सपेक्टेंसी के ब्रैकेट में क्या लिखा हुआ है? years years है सारे, ठीक है। और ये फिगर्स हो सकता है जिस बच्चे ने रिप्रोड्यूस करी है उसने मुझे बोला है मैडम years मेरे को एग्जैक्टली याद नहीं है, तो मैं उसको पूरा इसका क्रेडिट दे रही हूँ कि कोई जरूरी नहीं होता आपको पॉइंट्स में सब चीजें बाहर निकलते ही याद रहें, ठीक यस है। मैम। हाँ, तो आप इतना भी मुझे पेश कर दोगे ना एग्जाम से निकलने के बाद तो मैं समझूंगी बहुत अच्छा करके आए हो अंदर, इतना अच्छा। याद रखा है, ठीक है। और मतलब इससे मुझे आइडिया लग जाता है बच्चे का ग्राफ कैसा हुआ है अटेम्प्ट, ठीक है। यस और मैम। ये पॉइंट्स में मुझे नहीं याद होता, मैं मानती हूँ मुझे भी नहीं याद रहेगा बाहर निकल के, पर मुझे इतना याद रहेगा इसमें बढ़ा था इसमें कम हुआ था, ठीक है। ये तो क्योंकि मैंने वहां लिखा है तो मुझे याद रहेगा ना कि इसमें थोड़ा कम हुआ था, बाद में इसमें ज्यादा हाँ जी था, मैम। तो एग्जैक्ट फिगर मेरे को नहीं उम्मीद है। चलो ये आपका आज का होमवर्क है। ये वाला भी ग्राफ आया 31 तारीख को अबू धाबी में, इसको भी डिस्कस कर लो, आपको Yes, आ ma'am. सकता है, ठीक है। अब ये है एमिशन, ये देखो पहले पढ़ो दोबारा। एंड द पाई चार्ट शो द कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज इन द एटमॉस्फेयर बाय डिफरेंट इनकम ग्रुप्स इन 1990 एंड 2000, ठीक है। समराइज करना है इंफॉर्मेशन बाय सिलेक्टिंग एंड रिपोर्टिंग द मेन फीचर्स एंड मेक कंपैरिजन वेयर रेलेवेंट। एमिशन ऑफ CO2 इन द एटमॉस्फेयर है, हाई इनकम ग्रुप के लोगों ने कितनी कार्बन डाइऑक्साइड डाली है एटमॉस्फेयर में? 63%। मिडिल इनकम वालों ने 24% और लो इनकम वालों ने 13%। सो इतना सा पाई चार्ट है, इसमें एक कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन है। तो ये आप पाई चार्ट की वोकैबुलरी के हिसाब से मुझे बताओ, हाई इनकम वालों ने कितनी कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन करी है? 63% के लिए 63%। कौन सी वोकैबुलरी यूज कर सकते हो दिव्या? 63%, 2/3, वेरी गुड, ठीक है। 24 के लिए क्या कर सकते हो? Quarter. जस्ट अंडर ए क्वार्टर, ऑलमोस्ट अ क्वार्टर। ऑलमोस्ट ए क्वार्टर। लो इनकम वालों के लिए 13 ही लिख देना, ठीक है। यस मैम। यस मैम। हाँ, वो मैं इसलिए कहती हूँ कि कभी ये एक दो जगह चेंज करो पर हर जगह नहीं करो, ठीक है, वो बहुत अजीब लगता है बहुत ज्यादा, ठीक है। अब ये बताओ, ये 1990 है 2000 है, ये 1990 का वार है और ये वाला 2000 का है, ठीक है। अब मुझे ये बताओ मीट्रिक टन्स, कितने मीट्रिक टन्स, ये मीट्रिक टन्स क्या है? अच्छा, कितने मीट्रिक टन्स उन्होंने CO2 रिलीज करी है? हाई Yes, ma'am. हाई इनकम वालों ने कितने मीट्रिक टन CO2 रिलीज करी 1990 में और कितने मीट्रिक टन रिलीज करी 2000 में? सब कंट्रीज में ये बताओ, मैं सब कंट्रीज कह रही हूँ, सब इनकम ग्रुप्स में सबसे ज्यादा तो हमने ऊपर पाई चार्ट से कर लिया था कि इन्होंने CO2 रिलीज करी, और जो मीट्रिक टन है 1990 से 2000 कौन कौन से इनकम ग्रुप में बढ़े हैं कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन ओवर द 10 ईयर, और कौन से इनकम ग्रुप में कम हुई है? मैम लो दो में बड़ी है। में कम हुआ है, एक मिडल में बाकी में increase बड़ा है, हाँ, और वैसे सब में उनमें दोनों में मतलब वही है, ठीक है। इंक्रीज हुआ। ये 16 मीट्रिक टन्स, आपको ये जरूर यूनिट्स जरूर लिखने हैं हर जगह साथ में, ठीक है, परसेंटेज। एक ये मैम ग्रुप आया, हाँ मैम एक डाउट है मेरा इसी में। बोलो, हाँ बोलो। मैम दोनों को अलग अलग एक्सप्लेन करना है ना, पता है क्या, या फिर पहले आप कंपैरिजन करना है? अगर आपके दो ग्राफ्स है, पहले आप उनमें देखो उनमें आपस में कोई कंपैरिजन है, ओके मैम। फिर आप उसको स्टडी करो। देखो इसमें इन्होंने बता दिया हाई इनकम ने टोटल कितनी CO2 इमिट करी और इसमें एग्जैक्टली कितने मेट्रिक टन्स करी, और इसमें 2 Yes, साल है, तो आपको बेटर है कि इसको एक पैरा बना दो, इसका एक पैरा बना दो, यस मैम। ओके ठीक है। हाँ मैम हाँ जैसे कि टन्स है तो मैम ये टन लिखेंगे या टन्स ही लिखेंगे? टन्स ही लिखेंगे। 12 मेट्रिक टन्स, 12 मेट्रिक टन्स, नॉट टन। हाँ जैसे मिलियन में होता ना कि हाँ, मिलियंस का ऐसे नहीं आता हाँ जी नंबर के साथ, इसका आता है ओके। मीट्रिक टन। अच्छा ये वाला देखो, ये भी ग्राफ अभी आया है,
31 अक्टूबर को कनाडा में हमारी स्टूडेंट थी, उसको आया। बताओ इसमें है कनाडा, नेदरलैंड्स, यूके, यूएसए। पहले तो मुझे बताओ द कौन सी कंट्री के साथ नहीं लगना? कनाडा नहीं लगना मैम। बाकी तीनों के साथ लगना है, बाकी Yes, तीनों के yes. साथ लगना है, ठीक है। अच्छा अब बताओ, इसमें आप एक लाइन बनवाते हैं ना, इंद्रू बनवाता है ना एक लाइन। 1998। हाँ वेरी गुड, 1998 ठीक है। सबसे ज्यादा परसेंटेज ऑफ पीपल जो सेटिस्फाइड थे हेल्थ केयर के, वो कौन सी कंट्री के थे फॉर मेजॉरिटी ऑफ द टाइम पीरियड? नीदरलैंड नीदरलैंड नेदरलैंड। सबसे कम जो सेटिस्फाइड थे वो कौन सी कंट्री के थे? यूएसए। The USA. कौन सी कंट्री में जो सेटिस्फाइड थे उनकी परसेंटेज बढ़ी है और कौन सी कंट्री में कम हुई है? कनाडा में कम हुई है। यूएसए में मैम बढ़ी है मैम यूएसए में बढ़ी है। और सभी में यूएसए में बढ़ी है और किस में बढ़ी है? Canada. मैम स्टेबल हुई, कनाडा में तो कम हुई है। कम हुई है मैम, मैम कनाडा और नहीं नीदरलैंड है, में कम 1980 तक, 88 तक। वो देखो, आप ओवरव्यू जब देते हो ओवरऑल में, तो अपने फर्स्ट पॉइंट एंड लास्ट पॉइंट को देखना है। तो कनाडा में कम हुई है और यूएसए में बढ़ी है और यूके में भी बढ़ी है, हल्की सी बढ़ी है, चाहे ऑलमोस्ट स्टेबल रही है, ठीक है। हाँ स्टेबल भी लिख सकते हो, ऑलमोस्ट स्टेबल ही है, ठीक है, लिख सकते हो। तो आपको ये भी समझ आ गया, अगर आपको एग्जाम में आए आप कर पाओगे ना इसको अटेम्प्ट? यस मैम, यस मैम। मैम ट्रेंड में ये भी तो हो सकता है ना कि जो यूके एंड यूएसए में मैम ऑलमोस्ट इक्वल रही जो ट्रेंड में, और बाकियों में कम हुई है। यूके में, यूएसए में ऑलमोस्ट इक्वल कैसे रही? 10 से 20 हो गई अच्छा परसेंटेज। मैम, राइट या गॉट इट मैम, थैंक यू वेरी मच। मैम ऐसे भी कह सकते हैं कनाडा और यूएसए में ओवरऑल इंक्रीजिंग ट्रेंड शो किया, और हाँ बिल्कुल ऐसे नीदरलैंड में हाँ, और इन कनाडा में डिक्रीज है, पर सबसे ज्यादा सेटिस्फाइड लोग नेदरलैंड्स के ही थे, चाहे डिक्रीजिंग ट्रेंड था, और सबसे कम सेटिस्फाइड यूएस के ही थे, चाहे इंक्रीजिंग ट्रेंड था, ठीक है। हाँ ये टफ था ग्राफ जो अभी आया है, ये है 1944, 84 एंड 2004, और ये नीचे इंटरपर्सनल स्किल्स, रेलेवेंट जॉब एक्सपीरियंस, इन सर्विस ट्रेनिंग, ये 5 कॉलम्स है, ये 5 चीजों के, और 3 साल हैं, और ये पॉइंट्स गिवन है टू द एम्प्लॉइज ऑन द बेसिस ऑफ दीज 5 थिंग्स। तो 1944 में इंटरपर्सनल स्किल्स के 4.5 पॉइंट दिए जाते थे एम्प्लॉइज को, उनकी दिए गए थे, ठीक है। और रेलेवेंट जॉब एक्सपीरियंस के इतने, इन सर्विस ट्रेनिंग के इतने, बिजनेस क्वालिफिकेशन के इतने, नॉन बिजनेस क्वालिफिकेशन के इतने। ये कंफ्यूजिंग ग्राफ था, तो स्टूडेंट ने मुझे बोला, दोनों स्टूडेंट्स जिनका पेपर था ना इस दिन, एक के 6.5, राइटिंग में एक के 6 है, दोनों स्टूडेंट ने बोला था मैम ग्राफ बहुत टफ था, और पर हमें आपकी बात याद आ गई कि एक लाइन बना के देखो ये पॉइंट्स किसके लिए हैं, तो फिर उसके बाद हमने वैसे लिख दिया। एंड दोनों स्टूडेंट्स वैसे मेरे हिसाब से मेरे पास साथ साथ भी ले गई थी, कई बार कोई चीज टफ आ जाती है एग्जाम में, तो दिस वाज लाइक अ बिट कंफ्यूजिंग एंड दिस कैन बी रिपीटेड। तो ये इसका सैंपल आंसर हम आपको लिख के एक आध दिन में दे देंगे, ठीक है। मेरा ये रिवाइज करने वाला है, पर आप देखो इंटरपर्सनल स्किल्स, इस इतने पॉइंट्स दिए गए, इसके इनकी जो पॉइंट्स देने ये कम होते गए, कौन सी चीज है इसमें भी कम हुए हैं, और इसके जो है फ्लक्चुएट कर रहे हैं, इसके पॉइंट्स जो है ये सेम रहे हैं दोनों सालों में, फिर थोड़े बड़े हैं, ठीक है। तो इसको ऐसे ही लिखना है बेसिकली पॉइंट्स गिवन के हिसाब से, बट इसको थोड़ा सा मैंने लिखा, बड़ा लिखा गया, सो आई विल डिस्कस विद इंद्रूप एंड आई विल गिव यू अ सैंपल आंसर, ठीक है, इन अ डे और यस मैम। ये वाला भी अभी आया है बच्चों को, अभी रिसेंटली आया है। कितने परसेंटेज ऑफ पीपल है जिन्होंने जिम विजिट करा? ये नीचे बहुत सारे साल हैं और ये लाइनें हर एज ग्रुप के लिए हैं, ठीक है। तो ये Yes, वाली ma'am. जो सॉलिड लाइन है ये 45 प्लस एज ग्रुप है, ये वाली जो लाइन है ये है 35 टू 44 है, ये वाली जो लाइन है ये डॉट्स वाली है 18 to 24. 25 to ये वाली 24 25 टू 34 वाली है, ठीक है। तो ये है उसकी एज ग्रुप। तो ये वाला हो गया आपका, ये लाइन ग्राफ, ये भी अभी रिसेंटली आया है, ठीक है। So these are the graphs which I come. I'll be sharing 30 column graphs with you, जो मेरी बुक में है, पर मैंने वो 30 रीराइट करे अभी, और अकॉर्डिंग टू दिस न्यू मेथड जो हमने आपको सिखाया है, वो वाली फाइल में आज शेयर करूंगी। एंड योर होमवर्क इज गो थ्रू ऑल 30
एंड ma'am. ये आपने जो ग्राफ मेरे को लिख के भेजना है, पर मैं आप मेरे को 5 बजे के बाद कोई आया मैंने नहीं चेक करना है भाई, मेरी बस हो जाती है, फिर 8 बजे 9 बजे 10 बजे 11 बजे बच्चे भेजते हैं, आई कांट चेक इट। ओके, सो इट्स 5 o'clock इज द लिमिट, ठीक है। Yes, ma'am. 15 मिनट का होमवर्क है, उसके लिए आप डिले करते हो मुझे, ठीक है। तो ये आप कर देना, उसके बाद फिर मेरे को पता होता है कि मेरे को इतना काम करना है बिफोर आई गो टू बेड, एंड द मोमेंट आई फिनिश द लास्ट ग्राफ 4 ग्राफ और आए होते हैं मैसेजेस में। तो ये नहीं चलेगा, ठीक है। सो Yes, ma'am. यस, सो होमवर्क मैंने आपको दे दिया, मैं आपको फाइल शेयर करूंगी, उसमें ये वाला होमवर्क वाला ग्राफ भी डाल दूंगी। एक तो आपने लिख लिया ना लास्ट वाला मेरे साथ मिलके? Yes, ma'am. हाँ, चलो आई होप आप में से किसी को रिपीट होए ये वाले ग्राफ्स, आपको फिर अच्छा लगे कि हमने करे हुए थे डिस्कस मैम सभी को रिपीट हो जाए, मैं तो यही कहता हूँ। हाँ, सबको रिपीट हो जाए, सच्ची है ना, एवरीबॉडी Yes, शुड बी ma'am. लकी। Yes, ma'am. दे कम आउट विद न्यू थिंग्स, हम पकड़ के उसको फिर करा देते हैं, और फिर इनको Yes. रिपीट तो करनी है, इनको इनके Yes, पास ma'am. they have to repeat them, ठीक है। चलो, all the best, I'm ending the class now. Tomorrow again Yes, there'll ma'am. be an essay discussion class, agree disagree essays मैं कुछ डिस्कस करूंगी आपके साथ। Yes, ma'am. Yes, ठीक ma'am. है, चलो, ओके, Okay. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. बाय Thank you, ओके ma'am. मैम, बाय। बाय बाय बाय।